मेरे अज़ीज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ हसनैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज। तो हसनैन के पास है ये ग्लोरी 580 प्रो। इस गाड़ी का हम रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं, पहले वो आप देख सकते हैं। हसनैन आज अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार हमारे साथ शेयर करेंगे। इन्होंने मतलब कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है अभी, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द कार। कुछ चीज़ें हैं तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एंड सबसे पहले अगर मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, दैट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन वन वर्ड, व्हाट वुड दैट वर्ड बी? I would say great value ठीक because है। I think at the price I got this car, you simply can't get the mix of everything that this car has to offer. ठीक है। So there's no other competition that can offer that because बाकी का गाड़ियाँ options आजकल चाइनीज़ गाड़ियाँ तो बड़ी हैं, लेकिन for this price, I mean cheaper than this is only the BRV, and the BRV compared to this is nothing. बिल्कुल ठीक है। So ये है, बाकी सारी जो are good, 5-10 lakhs more expensive, and this is a 7-seater. जी। And this is not like the BRV, a narrow 7-seater. It's like a proper, as you प्रॉपर can see, 7 सीटर है it's like जी। a proper 7-seater. सही। So yeah, I think it's the best value you can expect. May not be a very fancy brand and all, but it's got all the amenities of a luxury car, and that's what it was for me. सही I है। just wanted something. I had a BRV earlier, or had a bit of extra money, so I just thought I should upgrade. And मैंने start किया था देखना with the Korean cars, the Sportage and the Tucson. But Sportage एक तो वो boring हो गया क्योंकि everybody's got it, and Tucson was a bit too expensive. मतलब वो that's like a good 20 lakhs almost का difference था उसका, सही। on मिला के ना। तो ये मैं मार्केट में देख रहा था, I got saw somebody selling it slightly used, सही and है। इस पे वो उसने अपना वो कुछ चीज़ें भी कराई हुई थी, so I thought why not, it's a good deal and I went for it. हमारा गिव अवे चल रहा है जो गाड़ियाँ स्पॉट करने के ऊपर है। बोगो, द ऑक्यूलिस्ट, राजमेटा स्टूडियो, इन सब के स्पॉन्सर के साथ, इन सब की कोलैबोरेशन में हमारा गिव अवे चल रहा है। पूरा रमज़ान चल रहा है, तो आप लोग जो हैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। जो उसकी टर्म्स हैं वो सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो इफ़ एनीवन ऑफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द गिव अवे, विन द एक्साइटिंग प्राइजेस, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखें और उसको फॉलो करें। जो आपने ब्लैक कलर की गाड़ी ली है, नॉर्मली होता है कि जी ब्लैक कलर की गाड़ी को साफ़ करना इज़ अ कंसर्न। So how important was this color preference for you when you were getting the car? Okay, so this is a long story. So honestly, my wife has always wanted a black car, ठीक है। and I have had a black car. पहले मेरे पास एक खैबर होती थी पुराने इस्लामाबाद में. So I've experienced this कि वो बहुत जल्दी गंदी होती है, and you have to keep it clean all the time. And to be honest, जब मैं ये ढूंढने निकला था गाड़ी, तो I saw a blue Glory as well. ठीक है। Also because उसका color is Harvard blue, and I work for Oxford, तो I thought कि वो Oxford का भी वही blue है, बड़ा वो, लेकिन वो फिर वो थोड़ी महंगी पड़ी थी compared to this that was almost as good as new ना, बिल्कुल 0 मीटर थी. And then the blue color wasn't as didn't quite as excite me as much as ये जब मैंने देखी, and I just thought that okay, this is the one I want. It's a beautiful color. Yeah, it's a beautiful color, और इसका वो because इसमें ceramic coat भी लगा हुआ है, तो इसकी look एक अच्छी थी, so I just thought. And Same. black car is like some black color जो है वो is a bit tricky in the case कि अगर आपने Corolla black रखी हुई है तो it obviously comes through as a government car or an army car, and black Revo signifies something that I completely detest. So वो पीछे गार्ड बैठे हुए वडेरा तो मैं हूँ नहीं जी। so that's not what I wanted either, but this sort of a car in black doesn't really say anything about who you are, so I liked the way it looked and I went for it. सही है। और वो बेगम भी खुश हो गई, so और क्या चीज़.
So how long has it been since you got this car? It's been about I think 4 months now, 5 months, 4 months, something like सही that. है। एंड आपने जब ये गाड़ी ले रहे थे तो आपने थोड़ी सी चली हुई गाड़ी ली थी, यूज्ड गाड़ी, तो इसकी सोर्स क्या थी गाड़ी की, एंड आपने इसकी जो कंडीशन है उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया? So I saw a few cars on Park Wheels and on some other channels also. वावा कार्स को मैंने चेकआउट किया था, फिर उस पर कुछ मिला नहीं। एंड देन मैंने ऑटो माइन जो इसकी डीलरशिप है जी, ये कुरंगी में प्रिंस ऑटो माइन, उनसे भी बोला हुआ था। सही है। दिस कार इन पर्टिकुलर वो पार्क व्हील्स पे भी मुझे मिली, और जो ऑटो माइन वाले हैं उन्होंने भी रेकमेंड की थी। ठीक है। सो बिकॉज इट वाज अ ड्यूल रिकमेंडेशन, तो आई वेंट टू सी इट। वो कुरंगी में कहीं डीप इनसाइड था। इट वाज अ लिटिल strange getting all the way there and all, but when I saw it and I saw the owner and I talked to him, so I understood कि यार ये शौकीन आदमी है, इसने गाड़ी का ख्याल भी रखा हुआ है, इसने इसको अपग्रेड भी किया हुआ है, और इसको अब वो लेनी है, रीवो लेनी है, तो ठीक है। हाँ, क्योंकि इतनी कम चली हुई गाड़ी पे एक कंसर्न ज़रूर होता है कि यार नई गाड़ी आई है, बंदा 2500 में बेच रहा है, तो गाड़ी सही भी है कि ख़राब चीज़ तो नहीं है जो बंदा बेच रहा है। से चेक करवा लिया था कि कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। सही है, सही है। बट इट वाज फाइन, इट वाज मतलब ऑटो माइन का रिकॉर्ड भी था उसमें। सही है। एंड अब वो काफ़ी महीने हो गए हैं, सो आई कैन सी कि इट वाज इन गुड कंडीशन। तो इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ियाँ रख चुके हैं? इस वक्त इसके साथ क्या क्या यूज़ हो रहा है? जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव के BRV से जैसे आपने बोला आपने अपग्रेड इस पे आए। So I have had a lot of office cars. So अभी भी बल्कि I live with my sister, तो our other car is a Civic, जो नई वाली शेप वाली है, and that's her office car. So we have one office car and this is my own car. सही। So इससे पहले हमारे पास BRV थी, Honda BRV, जो नया वाला मॉडल था, द BRV S लाइन जो है उसकी। एंड उससे पहले आई हैड अ निसान जूक, अच्छा, जो कि मैंने बड़े शौक से ली थी। सही। और लेने के बाद वो 5-6 साल तो बड़ी अच्छी चलाई, बट बेचते वक्त आई हैड क्वाइट अ बिट ऑफ अ लॉस ऑन दैट। सही। सो दैट वाज अ लेसन आई लर्न, बट आई एंजॉयड दैट कार ऑल्सो। सो वो भी थी। देन माई वाइफ हैड अ करोला, जो ये पुरानी शेप वाली थी, जी जी, नॉट द बिल्कुल ओरिजिनल वाली जो पाकिस्तान में असेंबल होना शुरू हुई थी, उसके बाद वाली जो शेप थी। सो शी हैड दैट, एंड उसके बाद शी हैड एन ऑफिस की स्विफ्ट, वो भी मुझे बड़ी पसंद थी बिकॉज इट्स लाइक अ लिटिल पॉकेट रॉकेट। आई जनरली लाइक ओवर पावर्ड कार्स बेटर देन अंडर पावर्ड कार्स, लेकिन मसला ये है कि जापानीज़ गाड़ियाँ ज़्यादातर अंडर पावर्ड ही होती हैं। सही। सो एंड अब चाइनीज़ गाड़ियाँ भी ज़्यादातर अंडर पावर्ड होती हैं, बट विद दिस कार आई डोंट फील दैट टू दैट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द टर्बो। और ये टर्बो मेरा ख्याल है जल्दी इसका इंगेज होता है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल अंडर पावर फील नहीं। यू डोंट फील दैट, ऑल्दो मतलब जब आप ऑब्वियसली भगाएं तो देन यू रियलाइज कि इट इज़ अ 1.5 cc इंजन इन अ वेरी बिग कार, बट देन कराची में भगाने का इतना ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, ना कोई मुझे अब इतना शौक रहा है भगाने का, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सही। सो इट्स फाइन। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी प्राइमरी गाड़ी है और तकरीबन आपने कुछ 7,500 किलोमीटर, 8,000 के करीब आप चला चुके हैं 4 महीने में। तो इसमें नॉर्मल आप फ्यूल डाल रहे हैं? क्योंकि कुछ मैंने ये भी सुना था कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हाई ऑक्टेन पे चलानी है इसको, नॉर्मल फ्यूल पे गाड़ी, तो व्हाट अबाउट दैट? लाइक आर यू रनिंग इट ऑन अ रेगुलर फ्यूल और आर यू यूजिंग हाई ऑक्टेन? आई हैव बीन यूजिंग हाई ऑक्टेन। ठीक है। ऑल्दो मैंने इसके काफ़ी जो है ना पहले गाड़ी के रिव्यूज़ भी देखे थे यूट्यूब पे, तो वो एक कोई साहब थे लाहौर के, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, फैसलाबाद लाहौर साइड के थे, उनका बड़ा वो पूरी एक स्टोरी लाइन उन्होंने दी थी, तो उसमें ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस कि उनको बिकॉज ऑफ बैड पेट्रोल उनकी गाड़ी मोटरवे पे बंद हो गई थी। ठीक है। तो वो दैट्स लाइक वर्स्ट फेयर दैट एनीवन कैन हैव। और फिर मेरा बिकॉज आई हैव अ फ्यूल अलाउंस, सब्सटेंशियल फ्यूल अलाउंस फ्रॉम माय कंपनी,
thanks to them for that. And I can use high octane, तो मैंने फिर इसीलिए high octane पे ही चलाई है, सही है। just to be safe. एंड आप इसको भी मेंटेन के लिए डीलरशिप से ही करवा रहे जी हैं? जी, ऑटो माइन से ही करवाया, Auto 2 Mine से दफ़ा अभी करवाया। तक करवा चुका हूँ, ठीक है। सर्विस एंड ऑयल चेंज वगैरह। और उसकी क्या कॉस्ट है सर्विस ऑयल चेंज की जो एक दफ़ा जाती है गाड़ी? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8,000 डिपेंडिंग ऑन, मतलब वो क्या चीज़, अगर कुछ रिप्लेस करते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट होती है, अदरवाइज 6-8 हज़ार। एंड आप उसको हर 5,000 किलोमीटर पे करा रहे हैं? जी 5,000। सो आई गॉट द फर्स्ट Yeah. डन व्हेन इट वाज डन अबाउट 7,000, बिकॉज वो पहले हुई थी सर्विस एक सही दफ़ा है। ना, और उसके बाद फिर इसका अभी लास्ट अभी रिसेंटली मैंने 10,000 वाला सही है। इंस्पेक्शन करवाया। एंड फ्यूल एवरेज आपको तकरीबन आप क्या दे रही है इस वक्त? हाँ, फ्यूल का इसका लोग, यू विल हियर दिस एज अ कंप्लेंट कि इसकी फ्यूल जो है इकोनॉमी थोड़ी सी हैवी है, विच इज़ ट्रू। इट्स बीन गिविंग मी 6.5 ऑन एवरेज, 6.5 आई वुड से, बट ठीक है। उसकी मतलब आई रियलाइज द रीजनिंग फॉर इट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हैवी कार, ठीक है, एंड इट्स अ 1.5 सीसी इंजन। तो इसका टर्बो जो है वो ओवर एक्टिव होता है, वो टर्बो ऑब्वियसली जब एक्टिवेट होता है तो गाड़ी पेट्रोल तो खाएगी, ऑब्वियसली। सो इट इज़ हैवी, बट मतलब कंसिडरिंग द द ट्रेड ऑफ विच इज़ के एटलीस्ट अंडर पावर नहीं फील होती, सो आई एम फाइन विद दैट। मुझे तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक और तो है। अगर मेरी अपनी जेब से जा रहा होता और फ्यूल अलाउंस ना होती तो आई वुड हैव प्रॉब्ली इट वुड हैव स्टार्टेड टू बॉदर मी इन द लॉन्ग रन। एंड अबाउट द कॉस्ट ऑफ पार्ट्स, मतलब ये जो भी जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं स्पेयर पार्ट्स इनके काफ़ी महंगे हैं। हैव यू डन एनी रिसर्च? अल्लाह का शुक्र अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी ऐसे, बट डिड यू डू एनी रिसर्च कि जी इसके जो पार्ट्स वगैरह स्पेयर पार्ट्स उनकी प्राइसिंग किस तरह से पार्ट्स है? ओवर हियर स्टफ लाइक ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह तो रीजनेबली प्राइस्ड है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर चीपर देन द होंडा के लेवल से, यानी कि कम होंगे। ठीक है। टोयोटा से में भी थोड़े ज़्यादा होंगे, या ठीक है। सुजुकी से थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन रीजनेबली प्राइस्ड है पार्ट्स, जो रेगुलर पार्ट्स होते हैं। और एक्सेसरीज जो होती हैं, द गुड थिंग विच पीपल डोंट रियलाइज अबाउट चाइनीज़ कार्स इज़, अगर इफ़ यू आर एविड अली एक्सप्रेस यूज़र, तो इस पे अगर आप ग्लोरी का वो सर्च करें तो यू फाइंड अ होल लॉट ऑफ पार्ट्स, एवरीथिंग फ्रॉम रिम कैप्स टू स्टीयरिंग का ये जो रिप्लेसमेंट अगर करनी पड़े एंड ऑल, एंड दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। अच्छा, तो अगर अली एक्सप्रेस ऑर्डर करें तो काफ़ी सस्ता है। ये एक अच्छी टिप है फॉर एनीवन हु हैज़ द कार और इज लुकिंग टू गेट द कार। तो अली एक्सप्रेस है, बल्कि इसका एक फेसबुक ग्रुप भी अब बन गया है ग्लोरी का, ठीक है, लोकल का। दिस फेयरली अबाउट 200-300 प्लस मेंबर्स, और वो भी वो टाइम टू टाइम पोस्ट लगाते रहते हैं अबाउट किसी के पास कोई सनवाइजर्स आ गए या मैट्स आ गए, सही। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। तो इस गाड़ी की कोई एक फीचर जो आपको बेस्ट लगता हो, व्हाट वुड दैट बी? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम अ बिट कंजर्वेटिव। मैंने MG भी देखी है, और वो मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी लग्जोरियस एंड ऑल, लेकिन थोड़ा सा ये जो आई लाइक द लुक ऑफ दिस इन द सेंस दैट इंटीरियर जो है ना इसका, बिकॉज इट्स नॉट टू फ्लैशी येट इट्स quite luxurious looking. I would agree, जो brown color, the Yeah, use of wood, the way dark the brown and it gives you quite a German car feel. Very German in car. the Actually, from the it's interior. I can tell you exactly. इसका ये जो पूरा डैशबोर्ड है, जी जी this is very similar to the BMW X5 की जो पहले होती थी जी interior. जी And the steering जो ये नीचे से इसका squared off है, जी जी this is very Audi. जी। So they are inspired by German cars. अगर आप इसकी गाड़ी की बैक लाइट्स वगैरह भी देखें तो दे वेरी सिमिलर टू द Audi Q7, जो नॉट द ब्रांड न्यू शेप बट the one before this one. लाइट्स भी इसकी वो उसकी तरह वो करती हैं, वो आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, बट लाइक द LED होता है ना जी Audi जी की, जी जी जी। दे आर नॉट लाइक अ सिंगल फ्लैश दैट ट्रैवल्स। एंड कोई एक चीज़ जो आपको इस गाड़ी की नापसंद हो? ओके, सो एज सच एक तो फ्यूल इकोनॉमी पॉसिबली, बट मुझे इतना कोई बॉदर नहीं करती, लेकिन दी अदर थिंग, द वन थिंग दैट डिड इरिटेट मी इन द स्टार्ट, इसके वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना चाइनीज़ चीज़ें बनाते पहले हैं सोचते बाद में, तो इसका जो हेड यूनिट है वो उसमें थोड़े से क्वर्क्स हैं। सही है। मतलब वो उसमें व्हेन आई गॉट इट, तो उस वक्त इसमें टाइम वो
चाहे मैं जो कुछ भी करूँ वो 1 घंटा आगे शो कर रहा था। सही है। तो उसका भी फिर वो मैंने यूट्यूब पे जाके देख के कोई जुगाड़ निकाल ही लिया, लेकिन दैट वाज बॉदरसम एट द स्टार्ट। सही है। और फिर यू नो सो सम एक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक ये जो इसका नीचे ये कंसोल का कंट्रोल्स हैं। जी जी। सो ये इससे रेडियो का वो स्वाइप करके सर्च हो जाता है, बट ऑन द मेन स्क्रीन इट डजंट वर्क। सो एंड देन ये लेफ़्ट राइट का जो वो है वो मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। सही है। सो यू नो इट्स लाइक देव जस्ट प्लॉन्ग थिंग्स देयर, सोचा नहीं है कि और उसको कनेक्ट नहीं किया है, क्या किया है, बट वो यू नो इट्स वेरी सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल लुकिंग। डू यू टॉक टू द डीलरशिप पे ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं? या दे सेड के फ्यूचर में अपग्रेड आएगी तो उसमें हो जाएगा ये, आप फिलहाल म्यूज़िक सिस्टम को छेड़े नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने जस्ट गॉट एन आफ्टर मार्केट एप्पल कार प्ले किट, और वो मैंने एप्पल कार प्ले इसमें इंस्टॉल कर दिया, नाउ इट वर्क्स फाइन। सही है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर how would you compare it with now that you sat in it for a bit, you'll notice that this is the one thing where this car is superior, I think, to a lot of the other cars. इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है। जी सर, मेरे को काफ़ी सॉफ्ट फील हो रही है। इट्स वेरी बैलेंस्ड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि वो नीचे लगे वगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड, लाइक द मेरे ख्याल से ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है इन द लॉन्ग रन। बिकॉज यू नो बिकॉज उसमें वो आई थिंक वो लीव स्प्रिंग शॉक्स का इफेक्ट टाइप होता है। जी, वो सस्पेंशन पे वो फॉर्च्यूनर जो ना ट्रक चैसी, हाइलक्स वाले चैसी पे, तो दिस इज वेरी नाइस, दिस इज लाइक अ जर्मन कार, इट्स गॉट दैट बैलेंस्ड comfort versus solidness. And how is the parking friendliness in terms of visibility and maneuverability वगैरह पे? Parking friendly बहुत है इसका, जो it's got a rear camera with the वो उसके अंदर levels पता चल जाता है कितना करीब है। वो ऊपर से aerial view से वो कार भी शो रहा है, 360 कैमरा, so that makes things very easy. ठीक है। From a parking perspective, generally इसका I think steering radius is obviously not being a big car, it's not you know like a small car. तो वो कैन बी एन इशू अगर आप बहुत टाइट स्पॉट्स में हो एंड ऑल। अदरवाइज वैसे कोई इतना मुझे कोई पार्किंग वार्किंग में इश्यूज तो नहीं हुए। आई मीन इट इज़ अ बिग कार बट इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज अमेरिकन कार्स और समथिंग। एंड अगर इसका कोई एक फीचर ऐसा हो जो आप चेंज कर सकें, मतलब कोई एक चीज़ इसमें जो आपको प्रॉब्ली यूजलेस लगती हो, बट देयर इज समथिंग दैट यू मिस इन द कार, व्हाट वुड दैट बी? I think for one thing it should have a proper Android head unit with Apple CarPlay, like the Sportage does, like the so एक I think वो ज़रूरी है। and I would think कि इसका जो MID है, जो अंदर का speedometer display है, considering that it's a very modern car otherwise, तो ये मुझे थोड़ा सा बेसिक लगता है कि बिल्कुल वो 2 color black and white सही है। तो वो अगर they should have put a digital one. So if you could go back in time, like 4 महीने पहले जब आप गाड़ी खरीद रहे थे, उस सिनेरियो में वापस जा सकें, do you think would you make the same decision again, और कुछ और आज लगता है कि ले लेते तो बेहतर रहता? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। आई थिंक दैट आई वुड हैव गॉन अगेन फॉर दिस। ठीक है। और इनफैक्ट आई थिंक कि नई गाड़ी आती है तो थोड़ा सा मैंने पहले निसान जूक भी आपको बताया था, सो आई डोंट हैव दैट फियर ऑफ गोइंग फॉर के मार्केट की गाड़ी लेनी है। सो मैंने इसके साथ थोड़ा सा रिस्क लिया है, एंड आई वाज होपिंग कि ये पिकअप करेगी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस वैल्यू इक्वेजन। लेकिन अब वो चाइनीज़ गाड़ियाँ आती जा रही हैं, सो नाउ आई एम अ बिट वरीड कि लॉन्ग टर्म में इसकी रीसेल वैल्यू वगैरह क्या होगी। ऑल्दो आई सीन के मुझे एक दफ़ा ऑफ़र भी आ चुकी है ऑफ अ गुड 2-3 लाख ऊपर की फ्रॉम जितने के मैंने गाड़ी ली थी। दिस वाज 2 months बैक एक्चुअली। तो मैंने आई वांट टू ड्राइव दिस फॉर लॉन्ग, या अंटिल आई वांट, मतलब द ओनली रीज़न आई वुड नाउ चेंज दिस कार इज इफ आई वांट टू अपग्रेड टू अ इवन बेटर कार और समथिंग। बिल्कुल ठीक है। सो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कंफर्टेबल वुड यू रेट दिस कार? की गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल आई वुड से 9 on 10। 9 on 10 on 10। एंड वो एक नंबर कहाँ मिस होगा, मतलब कौन सी चीज़ है जिसमें कंफर्ट में आपको कहते हैं फील हो जाएगा कसर रह गई? ओके, सो एक
थोड़ा सा एक मुझे कभी कभी ये लगता है, मे बी इट्स जस्ट बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग अ बिग कार, मैं मतलब BRV में ये फील नहीं होता था। इसकी जो ब्रेकिंग है उसमें मुझे थोड़ा सा आई फील कि शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग, ठीक है, और समथिंग, क्योंकि वो कभी ऐसे लगता है हाई स्पीड में मुझे फील होता है कि वो मतलब यू नो द कार स्ट्रगलिंग टू स्लो डाउन, ठीक है, so that I feel could be bit better because you know that just makes you feel more confident सही है। driving at high speeds and all. एंड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 प्रैक्टिकलिटी में आप इसको कहाँ रेट करेंगे? Practicality I would say 10 on 10 because 10 on 7 10 सीटर है, सही आप है। इसकी पिछली सीट्स भी देख लें, बैठ के देख लें, तो it's very comfortable for an adult also. कंपैरेटिवली अभी इसका जो रिसेंट कंपैरेटर एक आया है वो चैंगन की ओशान, जी, उसमें मैंने वो रिव्यूज़ का देखा था, तो वो 100 के उसमें पीछे जगह रिलेटिवली इससे बहुत कम है। और उसका जो 7 सीटर वाले बेसिकली वो बेस वेरिएंट है, जो टॉप एंड वेरिएंट है दैट इज अ 5 सीट वाला वेरिएंट। सो यू नो कंफर्ट वाइज, लग्जरी वाइज, आई थिंक इट्स प्रैक्टिकलिटी के लिए, यू नो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल कंफर्ट स्टैंड पॉइंट इट्स 10 on 10। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा, इसके अंदर एक बड़ा इन्होंने जो है USP के तौर पे यूज़ किया था ग्लोरी वालों ने कि एक वॉइस कमांड की जो इस गाड़ी के अंदर फीचर है कि जब आप उसको गाड़ी को कमांड देते हो सनरूफ खुल जाता है। वॉइस कमांड है, इट वर्क्स फाइन, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, एक तो मैं एम अ मार्केटिंग पर्सन माई सेल्फ, बैकग्राउंड मेरा मार्केटिंग का है, तो वो ये चीज़ें गिमिक्स होती हैं। दैट वाज एग्जैक्टली वेयर माय क्वेश्चन वाज हेडिंग कि वो फीचर जिंदगी में इस्तेमाल कितना होते हैं कि मतलब मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं सनरूफ यहाँ से आधा रख के खोल लूँ, इट्स नॉट कोई बहुत दूर है मुझे उसको कमांड देके खुलवाना। बट मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में जब से लिए गाड़ी तब से 2 दफ़ा यूज़ किया, वो भी देखने के लिए कैसे वो भी देखने के लिए कि चलता सही है कि नहीं, उसको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। सही है। और माई वाइफ यूजेज इट ऑफन सिंपली बिकॉज यू नो वो सिटिंग ऑन द पैसेंजर साइड या पीछे बैठते हुए इट्स इजी टू गेट समथिंग डन ऑटोमेटिकली। तो वो मेरा ख्याल में 3-4 दफ़ा मैंने उनको यूज़ करते हुए देखा है। सही है। और बच्चा मेरा वो बोलता रहता है ग्लोरी ग्लोरी, लेकिन वो ग्लोरी इसकी बात नहीं सुनती। तो yeah, so that's I don't think that's really so that's the thing. If there was a wrong trade-off, I would have said, you know, give me a better head unit and don't give me that functionality. Voice command. सही है। लेकिन प्रॉपर एक एंड्रॉयड यूनिट होना चाहिए जो कि वो सारी बटन साथ में उसके चलते भी हों। इसमें ना कभी कभी ये थोड़ी सी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाती है, मतलब वॉल्यूम ऊपर करूँगा नीचे हो जाएगी, सही है। मेन्यू में गाना आगे वाला लगाना होगा वो पीछे चला जाएगा, सही है। इस तरह की चीज़ें इसमें जो है ना वो क्वर्क्स थोड़ी सी हैं। सही है। इट फील्स एज इफ कुछ या तो सॉफ्टवेयर में ग्लिच है या वो पता नहीं चाइनीज़ ने बीच में कोई वो पता नहीं क्या कुछ लगाया हुआ है ट्रैक करने के लिए, आई डोंट नो, सम इशू समवेयर, तो मे बी अपडेट पे सही हो जाएगा। यहाँ पे मेरे सवालात हो जाते हैं ख़त्म। अब इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू फील हमने इस गाड़ी के बारे में कवर नहीं कर सके, सो प्लीज़ आपके पास फ्लोर है, आप पूछ सकते हैं। आप मतलब इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट द कार। सो आई थिंक दैट यू नो गाड़ी की यू नो कुछ चीज़ें होती हैं दैट वन मस्ट कंसिडर व्हेन you know adopting a car because it's a high sort of involvement purchase. इसका जो overall experience है ना, I would say overall experience is a combination of the drive, the luxury, the fuel economy, the safety, the suspension. वो आप अगर गाड़ियों का सबका देखें तो वो I think amongst its competitors it fares you know quite well. So I would you know urge generally customers के ज़्यादा लोग इस गाड़ी को देखें और स्टडी करें और ख़ुद से they can make their own decision and they will end up you know probably buying it over the others. यहाँ पे अभी ऑप्शंस इतने सारे आ गए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। सही बात है। लेकिन वो ग्लोरी का अब इन्होंने एडवर्टाइजिंग शुरू किया, इसको पहले इतना एक्टिवली शायद प्रमोट नहीं किया। दिस शुड हैव बीन लाइक एज पॉपुलर एज दिस स्पोर्टेज मेरे लिहाज से, तो इफ नॉट मोर, तो वो आई वुड वांट इट टू बिकम मोर पॉपुलर, उसमें मुझे भी फ़ायदा होगा व्हेन
4-5 years down the line. उसमें जो and चीज़ है ना decide to दैट sell इज़ it. के लोगों का एक बड़ा अभी भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब आपने मेरे हिसाब से बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया कि आपने तकरीबन 5 मिलियन इस गाड़ी के ऊपर लगाए हैं। मैं अभी खुद भी एक थोड़ा सा इस पर रेजिस्टेंस होगी इतने पैसे एक चाइनीज़ ब्रांड को खरीदते हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक है कि यार चाइनीज़ ब्रांड पता नहीं आगे चल के कैसा हो। सो दैट इज़ समथिंग जो कि मेरे ख्याल में लोगों के अंदर अभी है, और उस इट विल टेक 2-3 years 4 years टाइम फॉर एवरी वन टू एक्सेप्ट कि हाँ यार दिस इज़ अ रियलिटी नाउ, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि 60s के अंदर आपके पास अमेरिकन गाड़ियाँ होती थी, जब जापानीज़ गाड़ियाँ 70 की दिहाई में आई तो उसको कहा गया ये क्या शिट बॉक्सेस आ गए। इसी तरह 90s के अंदर जब हमने पहली दफ़ा Hyundai और डाइवो का नाम सुना था तो उन्होंने कहा यार जापानीज़ गाड़ी होती है ये क्या है। सो सिमिलरली अगर हम देखते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आज से 20 साल पहले जब पहली दफ़ा चाइनीज़ गाड़ी आई थी, वो गोनाओ की आई थी, वो क्या उसे कहते हैं चेरी की क्यू आई थी, वो गाड़ियाँ जो थी बड़ी एक प्लास्टिक की और बड़ी एक मतलब दोज वर्ंट at par to what Chinese cars are today. Yeah, now these are like as good as the Korean cars also, if not the Japanese. मतलब बैठे हुए इस गाड़ी के अंदर अगर मैं कोई इसका फर्क ब्रांड नहीं। को कवर कर दूं तो यहाँ पे मुझे जो बैठे हुए जो मुझे व्यू आ रहे हैं लुक्स लाइक कि मैं किसी जर्मन गाड़ी में बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट येस इट विल टेक सम टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट कि यस चाइनीज़ गाड़ियाँ एक रियलिटी हैं और अच्छी गाड़ी हैं, बट वो अभी के लिए वो टाइम अभी नहीं है। या मेरे उसमें हिसाब जो है ना एक चीज़ होती है विच आई गेस आई हैव आल्सो टेकन अ रिस्क ऑन, कि जो जापानीज़ गाड़ी है और जो कोरियन गाड़ी है उसमें अभी भी आपका डिफरेंस ये है कि व्हेन आई बाय अ टोयोटा रीवो फॉर एग्जांपल, आई नो कि ये में 10 साल गाड़ी जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। ट्रू कोरियन गाड़ी का आई कांट से दैट फॉर श्योर। बिल्कुल। और ऐसा ही है। चाइनीज़ गाड़ी का अभी राइट नाउ आई कांट से दैट एट ऑल, बिल्कुल। बिकॉज दे नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड। बिल्कुल सो वो फेयर बात है कि जो that 10 time साल will वाली चीज़ है दैट इज़ ओनली फॉर जापानीज कार्स, वो तो आप किसी जर्मन गाड़ी या अमेरिकन गाड़ी के बारे में भी नहीं बोल सो सकते। ये चाइनीज़ गाड़ियों का भी पता चलेगा कि कितनी ड्यूरेबल हैं, कितनी वो हैं। True. अच्छा एक चीज़ आप कह रहे थे कि if हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी विच इज़ द ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। डीसीटी है इसके अंदर जी तो बिल्कुल। जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है वो लोगों को थोड़ा सा शुरू में ना, मुझे भी थोड़ा सा चलाते वक्त कन्फ्यूजन हुई थी। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूल क्लच, अच्छा, और ये मैंने काफ़ी गाड़ियों के रिव्यूज़ देखे हैं इवन जर्मन कार्स के, जो डीसीटी ट्रांसमिशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बिल्कुल तो उसमें जो है ना जब वो एकदम से फ्लोर करें गाड़ी को तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पिकअप करने में, और वो कभी कभी उठती नहीं है एकदम से। जी। सो डोंट पुट द ओनर्स ऑफ दैट ऑन दिस कार, दैट्स अ जेनेरिक ट्रांसमिशन इशू विद डीसीटी। तो बेसिकली डीसीटी के अंदर जो है शिफ्टिंग बहुत स्मूथ कर देते हैं, बिकॉज आपके दो क्लचेज हैं, एक आपके इवन गेयर्स को इंगेज कर रहा है, एक ऑड गेयर्स को इंगेज कर रहा है। बट येस एट द सेम टाइम डीसीटी के थोड़ी सी आपको एहतियात ज़्यादा है कि इन टर्म्स ऑफ इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है, जो एक्चुएटर ऑयल है, दोज नीड टू गेट चेंज ऑन टाइम, तो उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। सो इट्स नॉट द आइडियल ट्रांसमिशन टू हैव इन अ कार, बट जो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रांसमिशन, मतलब फार्मूला 1 गाड़ियाँ और जो आपकी स्पोर्ट्स कार्स वगैरह के अंदर ये ट्रांसमिशन यूज़ होती है, बट हमारे यहाँ पे थोड़े से हम लेड बैक एटीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, उसके हिसाब से इट्स नॉट द आइडियल ट्रांसमिशन इज़ व्हाट आई वुड। थोड़ी वो नाजुक है उसके लिहाज से। तो हसनैन थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज। व्यूअर्स ये था हसनैन के साथ इनकी ग्लोरी 580 प्रो का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा अपना, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।